Who are an entrepreneur? First question. What is an entrepreneur? Who are an entrepreneurs? What is entrepreneurship? ठीक है, entrepreneurship क्या है? ठीक है. What is the difference between entrepreneurs and entrepreneurs? What are the difference between entrepreneurs and entrepreneurs? What is the difference between, write the difference between managers and entrepreneurs. Managers and entrepreneurs. ठीक है. Next question is, what are various misconceptions? What are various misconceptions for an entrepreneur? For an entrepreneur. So पहला question क्या है? Who are an entrepreneur? Second है कि what is entrepreneurship? Third question है entrepreneur entrepreneurs का difference, managers and entrepreneurs का difference, the misconceptions of for an entrepreneur, misconceptions क्या है entrepreneurs के लिए, ठीक है. Next question is, what is different between the creativity and innovation? Creativity, innovation and invention. Creativity, innovation and invention. ठीक है. फिर what are the characteristics of an entrepreneur? What are various characteristics for an entrepreneur? What are various characteristics for an entrepreneur? What are the traits? Yes. Next question is, what are various qualities or traits of an entrepreneur? Qualities or traits क्या है किसके लिए? Entrepreneurs के लिए. Clear हो रही बात? ठीक है. उसके अलावा next question is, what is the role of entrepreneurship in economic development? What is the role of entrepreneurship in economic development? In economic development. In economic development. Next question is, what is cultural entrepreneurial? What is culture entrepreneurial? What is culture entrepreneurial? ठीक है. Next question. What is motivation? What is motivation and what are various factors affecting motivation? What are various factors affecting motivation? कितने questions है सोनू? Next question is, what is Maslow need hierarchy theory? Maslow need hierarchy theory. Maslow need hierarchy theory. ठीक है. उसके बाद लिखिए मैक्लेलैंड थ्योरी. मैक्लेलैंड थ्योरी, डीप मैक्लेलैंड थ्योरी. ठीक है. उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स के जितने थ्योरी है, वॉकर, शम्फिटर एंड पीटर ड्रकर, तीनों थ्योरी, वो तीनों थ्योरी लिख लीजिए अलग अलग. ठीक है. उसके बाद काकीनाडा एक्सपेरिमेंट. काकीनाडा एक्सपेरिमेंट सब अलग अलग क्वेश्चन है ये सारा. बस मैंने आप लोगों को बता दिया कि पीटर ड्रकर थ्योरी एक क्वेश्चन, वॉकर्स थ्योरी, शम्फिटर थ्योरी, काकीनाडा एक्सपेरिमेंट. कितने क्वेश्चंस हुए? ठीक है. आगे लिखिए, हाउ वी कैन सर्च बिजनेस आइडियाज. हाउ वी कैन सर्च बिजनेस आइडियाज. हाउ वी कैन सर्च बिजनेस आइडिया. ठीक है. बिजनेस आइडिया में इसमें सब कुछ आ जाएगा, मॉडल रिकॉग्निशन. ठीक है. कैसे हम सर्च करते हैं आइडिया, सोर्स ऑफ आइडियाज क्या है. ठीक है. सो एवरी क्वेश्चन कम अंडर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन सिलेक्ट द पर्टिकुलर बिजनेस. हाउ वी कैन सेलेक्ट, या फिर व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द
पर्टिकुलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्या क्राइटेरिया को हम सिलेक्ट करेंगे बिजनेस को चूज करने के लिए, जैसे लोकेशन देखेंगे, टेक्नोलॉजी देखेंगे, इक्विपमेंट देखेंगे, इन्वेस्टमेंट देखेंगे। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी? व्हाट आर वेरियस क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग पर्टिकुलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी? ठीक है। What are the sources for, what are the various sources for financial investment? ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से, फ्रॉम वेयर यू विल गेट द फाइनेंस फॉर द स्टार्टिंग योर बिजनेस। ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोर्सेस फॉर फाइनेंस? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ये क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। What are the various sources? What are the various sources for getting finance for your business? What are the various sources for finance? In short, बस लिख लीजिए what are the various sources for finance. ठीक है. Now the next question is, what is MSME? Micro, small, medium enterprises. ठीक है. MSMEs क्या है? KVIC क्या है? खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। KVIC क्या है? उसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या है? व्हाट आर स्मॉल इंडस्ट्रीज? स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या है? नबार्ड क्या है? नबार्ड, NABARD। सिडबी क्या है? DICs, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ठीक है, यस, ट्रेड फेयर लिख लो। व्हाट इज ट्रेड फेयर्स? ट्रेड फेयर क्या है एंड हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर, ये कैसे हेल्पफुल है, किसके लिए? एंटरप्रेन्योर्स के लिए ट्रेड फेयर्स। एक मिनट, just wait for a sec. उसके अलावा लिखिए, which one is the better one, starting a new business or acquiring the existing one? Which one is the better option for an entrepreneur, starting your own business or acquiring the existing one? इसका advantages और disadvantages? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। गवर्नमेंट स्कीम्स जितने भी एंटरप्रेन्योर्स के करवाए हैं सब देख लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कीम उतना पढ़ना पड़ेगा। ये सब समझ आ रहे हैं? क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए? 28। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल बिजनेस कंसेप्ट में लिखिए, स्मॉल बिजनेस कंसेप्ट से लिखिए, प्रोस्पेक्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अ फ्री इकोनॉमी। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन फ्री इकोनॉमी। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अ फ्री इकोनॉमी। ठीक है, उसके अलावा लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, what are the potential drawbacks of an entrepreneur? What are the potential drawback of an entrepreneurship? What are the potential drawbacks of the entrepreneurship? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, what is strategy? What is strategy? What is strategy? And what are various, what strategy में जो याद है ना तुम लोगों को, जो स्टेप्स कराया था स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का, सुपरा, ये जो स्ट्रैटेजी वगैरह करवाया था, ये पूरा अच्छे से लर्न होना चाहिए। ये वाला याद है ना, ये स्ट्रैटेजी, मार्केट, ये सब, कस्टमर एंड बेनिफिट्स वगैरह,
इसको याद कर लेना। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is strategy and what are the various steps for making the strategy for the small industries? What are various steps for making the small industry? कैसे, कौन से स्ट्रैटेजिक वे में हम स्टेप्स लेंगे ताकि इंडस्ट्री आपका क्या हो सके, शुरू स्ट्रैटेजी उसमें यूज किया जा सके, ठीक है। क्या क्या चीजों को हम कैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज में, इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसके सारे स्टेप्स वगैरह, प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचेंगे, इंडस्ट्री कौन सा शुरू करेंगे, इनोवेशन कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, मार्केट को कैसे एनालाइज करेंगे, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग में जो मैंने स्टेप्स कराया था वो सब लर्न होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल, हाँ, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, हाउ वी कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस को हम कैसे शुरू कर सकते हैं, व्हाट आर वेरियस स्टेप्स इन दैट, ठीक है। हाउ वी कैन स्टार्ट द स्मॉल बिजनेस, ठीक है, स्टेप्स फॉर द स्टार्टिंग द स्मॉल बिजनेस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the various type of business organization? Next question, what are the types of business organization? Business organization की कितने टाइप है, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट वेंचर, कॉर्पोरेशन, जो भी है वो सारे के सारे याद रखो। कितने क्वेश्चन हुए सोनम? हाँ, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the benefits? पहले तो लिखो how we can register the small scale industries, how we can register the small scale industries, how we can register the small scale industries, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हम कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the benefit of registering, what is the benefit of registering a small scale industry या small business? रजिस्ट्रेशन स्टेप्स क्या है रजिस्ट्रेशन का, और क्या क्या बेनिफिट्स है रजिस्ट्रेशन में, what are the benefits for registering the small business, ठीक है, स्मॉल बिजनेस, ये सब याद रखिएगा। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या है, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ लिख लीजिए, जैसे EDII क्या है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, EDII क्या है, IIE क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह क्या है, तो ये 2-3 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। In today's class we are going to complete what are the various sources of information, how the entrepreneurs get the information entrepreneurs को कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे क्लास में। In the last class what we studied about that how we can search the business idea, what are the 2 ingredients for the business opportunities and how we can evaluate the business opportunity, हम कैसे evaluate करेंगे बिजनेस को, ठीक है। प्रमोटर के रिसोर्स के साथ मैच होना चाहिए, मार्केट के साथ, मार्केट के हिसाब से होना चाहिए, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से एंड रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, राइट। In the today and we also studied about the model of opportunity recognition process, model of opportunity recognition process। अब एक चीज ध्यान रखिए इसमें कि बेसिकली हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो बिजनेस का आइडिया है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें मैंने कुछ फैक्टर्स बताए थे कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, थ्रू एजुकेशन,
एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन अगर आप एजुकेशनल मतलब बोल सकते स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो, so in that case we are able to मतलब कुछ persons जो है they are better able to analyze the market situation, ठीक है। सेकेंड था एक्सपीरियंस, योर पर्सनल एक्सपीरियंस, योर वर्क एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग जो मार्केटिंग मैनेजर हैं, अच्छा तुम लोगों को पता होगा स्टोरी, जो फ्लिपकार्ट है जिनको किसने स्टार्ट किया था, बिन्नी बंसल एंड सचिन बंसल, राइट। सो एवर यू हैव आइडिया कि उन लोग पहले कहाँ काम करते थे, दे बोथ आर आईआईटीएंस एंड दे वर वर्किंग इन Amazon। सो Amazon का बिजनेस आइडिया जो है, मैं नहीं कहूंगी चोरी कर लिया आइडिया, बट एनी हाउ बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस दे आर एबल टू स्टार्ट द फ्लिपकार्ट, राइट। So we can say that the prior knowledge about the market, customers and about the business, मतलब business को हम कैसे run कर सकते हैं, ठीक है। So because of this only we can able to recognize the business opportunity. For example, like बिन्नी बंसल, सचिन बंसल को क्यों लगा कि उनको फ्लिपकार्ट शुरू करना चाहिए, because they are able to understand the success of Amazon, right? So they understand कि because of the digital scenario and technology, अभी ज्यादा दिन नहीं है लेकिन कुछ सालों में जो इंडिया का मार्केट है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द डिजिटल मार्केट, सो दे एबल टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड दे स्टार्टेड फ्लिपकार्ट, राइट। सो इन शॉर्ट, एजुकेशन, योर नॉलेज, like if you studied from the marketing, you have better idea about the market as well, maybe conceptual not practical, but experience से आपको क्या पता लग जाएगा, practical knowledge भी आपको मिल जाएगा। So experience, education and your entrepreneur's alertness, concentration, passion, that can also be the part of this, and the networks, like what kind of networking you have, कितना बिजनेस का आपका नेटवर्क हाई है, आप कितने लोगों को जानते हो, बिजनेस पर्सन कितने लोगों को जानते हो, कितने लोग आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल these factors are going to give you finally a successful opportunity recognition, ठीक है, यानी आप सक्सेसफुली किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, राइट। So this is basically model of opportunity recognition process. Now the next point is sources of information. Sources of information. Sources of information क्या है? एक मिनट रुकना, सुनिएगा सब लोग। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो देखते हैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आइडिया को, सोर्सेस को देखते हैं कहाँ से वो आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। These मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्वे में पाया गया है कि जो 60% जो रिस्पोंडेंट हैं सेड वर्किंग इन द इंडस्ट्री वाज द मेजर सोर्स ऑफ आइडिया फॉर द बिजनेस। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मतलब 60% जो रिस्पोंडेंट हैं सेड वर्किंग इन द इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में काम करना, एक्सपीरियंस लेना उनके लिए सबसे बड़ा क्या है, सोर्स है आइडिया का। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि मैं किसी बिस्किट फैक्ट्री में आई एम वर्किंग, आई अंडरस्टैंड दैट हाउ द बिस्किट्स आर मेड, so somehow the experience and the working atmosphere is the reason for the getting the source of idea, ठीक है। उसके अलावा आपके यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, आइडियाज जो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर के कुछ आइडियाज हैं, क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। तो पहला तो है हॉबीज, आपकी क्या क्या हॉबीज है। इफ समवन लाइक बैडमिंटन, दे कैन स्टार्ट ओपन देयर ओन बैडमिंटन के लिए सिखाने के लिए कोई सेंटर, इंस्टीट्यूट दे कैन ओपन, ठीक है। और उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, लाइक योर हॉबीज, योर पर्सनल इंटरेस्ट कैन बी द आइडिया ऑफ द बिजनेस। लाइक इफ आई जस्ट वांट टू, मतलब कुछ पर्सन ऐसे जो वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक होता है, तो दे कैन स्टार्ट देयर कैफे ऑफ वीडियो गेम्स, राइट। So what is the hobbies or personal interest of the person, ठीक है। सेकेंड है what is the abilities, ability क्या है आपका, आपका स्किल क्या है और आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। ये घूम फिर के सारी चीजें सेम ही है। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि what are the various source for the ideas, you can write about the hobbies, environment, experience, education, each and everything, right। उसके अलावा फैमिलियर एंड अनफैमिलियर सर्विसेज प्रोडक्ट, यानी कि आपके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, हॉबीज हो सकते हैं, एबिलिटीज आपकी हो सकती है, आप किस चीज के काबिल हैं, ठीक है, आपका स्किल किस चीज में है। इफ द पर्सन इज नॉलेजेबल फॉर मशीन चलाना उसको आता है, देन दैट पर्सन हैव टेक्निकल नॉलेज, तो दे कैन स्टार्ट द टेक्निकल सर्विसेज वगैरह का सेंटर शुरू कर सकता है वो, राइट। And the familiar and unfamiliar services and products, familiar and unfamiliar services and products, इसका मतलब है कि आप कितना ज्यादा सर्विस के बारे में पहले से जानते हो, यानी फैमिलियर सर्विस को आप अडॉप्ट कर सकते हो
या अनफैमिलियर सर्विस एंड प्रोडक्ट। फैमिलियर सर्विस में जैसे डिलीवरी सिस्टम, जो आपका कुरियर, फूड डिलीवरी सिस्टम, ये सारे क्या है, फैमिलियर सर्विसेज। तो यानी कुछ फैमिलियर सर्विसेज और अनफैमिलियर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट के थ्रू यू कैन एबल टू गेट द सोर्स फॉर द आइडिया फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। नेक्स्ट वन इज यहाँ सम लिमिटेशंस व्हाट टू लुक फॉर, उसको थोड़ा सा गड़बड़ है बुक में। आप लोग क्या क्या हो सकते हैं, पहला है हॉबीज, पर्सनल इंटरेस्ट, एबिलिटी, स्किल, वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ आपका वाले में भी तो मिसप्रिंट ही है। पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज, क्या क्या पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज हो सकते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज कैसे यूजफुल हो सकते हैं सर्च फॉर आइडिया के लिए। लाइक अगर एंटरप्रेन्योर जो चीज पसंद करता है, कोई भी पर्सन, जैसे मुझे सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग फॉर एग्जाम्पल, सो ऐसे केस में आप जो है उनका एक सक्सेसफुल बनने का सबसे बड़ा रीजन होगा आपका खुद का इसमें इंटरेस्ट है, यानी आपका खुद का इसमें इंटरेस्ट है तो आप उस चीज को करने में ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। जैसे एग्जांपल में, इफ आई वाज अर्लियर वर्किंग इन कॉर्पोरेट एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन टैली एंड डे टू डे वर्क, बट आई वाज इंटरेस्टेड इन टीचिंग। सो if whatever is your ability, whatever is your interest, and whatever you love to do, that is something which always compel you to do that work only. So in short, if you literally like something, अब किसी को मोमोज पसंद है तो they can start their momos vendor as well, they can become that, they can start their resto of momos. Work experience, knowledges and skill. By tapping into the knowledge of the particular industry or market gained by working in it, an entrepreneur can pinpoint areas of potential opportunity. In short, like if someone is working earlier in a particular sector, that what I give the example of the Flipkart, that the owners of Flipkart, earlier they were working in the Amazon, so they are able to understand that what is going on in the future, right? Like they knows कि हाँ आगे चल करके दिस वर्क इज गोइंग टू बिकम द लाइक डिजिटल मार्केट होने वाला है, क्या क्या कमी है जो हम पूरा कर सकते हैं। लाइक Amazon जो था वो स्टार्ट किया था काम करना, वर्क करना, तो उसमें इतना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं थे जितना अदर आइटम्स का था, लेकिन जब फ्लिपकार्ट शुरू हुआ तो किसके साथ हुआ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ। नायका शुरू तो किसके साथ हुआ, ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ, जो स्पेसिफिकली अवेलेबल नहीं था। सो कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपको बता देगा कि आपका एरिया पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके लिए कौन सा है, ठीक है। और अगर आप कहीं बहुत ज्यादा वर्क कर चुके हो, एक्सपीरियंस है, तो मार्केट को एक्वायर करना, प्रमोशन करना, प्रोडक्ट को सेल करना, कंज्यूमर को, कंज्यूमर बेस रेडी करना, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर को एनालाइज करना, बिहेवियर को समझना, एमआर करना, मार्केट रिसर्च करना, दैट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू, because that is not something that is new for you, but you already did all these things in the earlier office. So your knowledge, your experience, your skill, ठीक है, your conceptual mind is something which is helpful for starting the business. Clear हो गया? क्या बताया मैंने विशाल? Stand up. Next, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस करेंटली अवेलेबल, यानी कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विस अवेलेबल है, फैमिलियर एंड अनफैमिलियर। मतलब व्हाट प्रोडक्ट डू यू यूज एवरी डे, मतलब डेली यूज के लिए कौन से प्रोडक्ट को यूज किया जा रहा है मार्केट में, ठीक है। डू दे डू एवरीथिंग दैट यू विश दे वुड, यानी कि वो सारे प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए प्रॉपरली ठीक है, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। What about products you are not familiar with, मतलब कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट्स में अभी तक नहीं आए हैं या मार्केट में आ भी चुके हैं तो आपको नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, these all questions are become the source for your business idea, ठीक है। नया कुछ लेकर आप मार्केट में आ सकते हो ना, इनोवेशन आप कर सकते हो किसके थ्रू, थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट एंड सर्विस कौन से अभी करेंटली अवेलेबल है और किसका डिमांड मार्केट में चल रहा है, राइट। नेक्स्ट वन इज समथिंग दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जो किसी भी कंपनी के बेसिकली कह सकते हैं कंट्रोल से बाहर के एनवायरनमेंट होते हैं, आपके टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ठीक है। सो इट रेफर्स करेगा, ये मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है that refers to the positive trends or changes, यानी कौन कौन से मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। जैसे एकदम से जीएसटी आया, that totally changed the basically economic situation of the country India, right? So in short,
वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द मार्केटिंग इज डायनामिक, यानी मार्केट में बदलाव होता रहता है और कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसके लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एक बार नहीं टिक रही है, बार बार बदल रही है, तो दैट कैन बी ऑल्सो द प्रॉब्लम फॉर द मार्केट के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। सो द अपॉर्चुनिटी जो है वो कैसे फॉर्म किया जा सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को देखते हुए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हिसाब से। सोसाइटल कल्चर, जैसे अभी क्या चल रहा है, जिम वाला कल्चर, हेल्थ कॉन्शियस, so that can be the part of that. डेमोग्राफिक यानी एज का, अब देखो 9th क्लास 10th क्लास 2 क्लास 3 क्लास के बच्चे के दे हैव फोन, दे हैव गेम्स, दे आर प्लेइंग वीडियो गेम्स, राइट। So we can see what kind of the demographic situation is there nowadays. The women and men both are working, दोनों काम करते हैं। So like women, they are doing earlier household chores, but nowadays they are not doing that. So what kind of facilities, what kind of new technology we can invent to helping those women? ठीक है, so there are dishwasher are available. This is the example of that, right? Roti maker is there, है ना? So what kind of changes? Political sectors में legal sector is something which is related with the law. Law में क्या बदलाव आ रहा है, ठीक है, law में क्या क्या चीजें बदलाव आ रहा है। So all these are the factors for, these can be the basically कह सकते हैं these are the sources of for ideas. ये 4 मेन सोर्स है आइडियाज के। कौन कौन से हैं? पर्सनल, आपका क्या क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या है, उसके अलावा आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट फैमिलियर प्रोडक्ट है, कौन सा अनफैमिलियर है। जैसे बहुत सारी ऐसी मोबाइल की कंपनी दैट इज अनफैमिलियर इन द मार्केट, बट सो मेनी कंपनीज आर फैमिलियर, राइट। कौन सा मार्केट में प्रोडक्ट है, कितना कस्टमर सेटिस्फाइड है, क्या चेंजेस हो सकता है मार्केट में, कौन कौन से प्रोडक्ट में हम बदलाव कर सकते हैं वो, और लास्ट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, क्या क्या नया चीज आ रहा है, क्या क्या नया बदलाव आ रहा है। तो ये 4 हो गए आपके किस चीज के सोर्सेस, आइडियाज के। उसके अलावा देखा ना सोनम, मुझे एक बार नोटबुक, आगे क्या क्या हो सकते हैं चेंज और क्या क्या हो सकते हैं सोर्सेस। पास्ट वर्क एक्सपीरियंस तो आई गेस सबको पता चल ही गया, आपकी हॉबीज इंटरेस्ट जैसा होगा जो होगा, जैसे बहुत लोग की डांसिंग एकेडमी दे स्टार्टेड बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन डांस। स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज, आपकी एबिलिटी स्किल क्या है, जो मैंने इकट्ठे एक साथ लिखवा दिया था वर्क एक्सपीरियंस में। Friends and family can also give you some option for starting the business, so that can also be the source of या ideas for, मतलब ideas हो सकता है किसके लिए, business start करने के लिए। उसके अलावा you can travel from one place to another, so travel can also be the source if you are moving from one place to another, one country to another, so you are able to grab the basically market differences को grab करके you can start the business, right? नेक्स्ट वन इज बुक्स मैगजीन्स, दीज आर द सेकेंडरी सोर्सेस, यानी बुक्स वगैरह के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू यू कैन एबल टू गेट द सोर्सेस ऑफ आइडियाज। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च का ही सिर्फ काम करते हैं, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज प्योरली द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग फॉर दैट, ठीक है। सो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं उससे भी आपको आइडियाज मिल सकता है बिजनेस का। उसके अलावा आपका वेबसाइट या इंटरनेट, ठीक है, एंड आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर आप जो आइडिया को जनरेट करने के लिए कुछ लोगों का ग्रुप को यूज करते हो, लाइक एग्जांपल में 6-7 फ्रेंड्स आर सिटिंग एंड दे आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग द बिजनेस। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज समथिंग जहां पर दिमाग पर जोर लगाकर आप इंटरनली यू आर गेटिंग द आइडियाज फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। And some focus group are there, like they are basically for doing only one thing, that is innovation. So focus group की help से, brainstorming की help से, and उसके अलावा आपके friends की help से, travel की help से, आपकी knowledge, skill, hobbies की help से you can generate the ideas for the entrepreneurs. Clear हो गई बात? उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जो दिया हुआ है आपके बुक में कि देयर आर सम मोर स्ट्रक्चर, कुछ और भी है, जैसे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज समथिंग वेयर द बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स आर नो अबाउट दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड, यानी बिजनेस वर्ल्ड में क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या न्यूज में हेडलाइंस क्या बना हुआ है, क्या मार्केट में चल रहा है। खैर अभी कोविड खत्म हो चुका है, बट अभी तो सबसे ज्यादा न्यूज में चल रहा है स्कूल्स आर गोइंग टू स्टार्ट वंस अगेन। सो और कौन सी बुक्स पॉपुलर हो चुकी हैं, कौन सी मूवीज चल रही है,
ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो एबल टू गेट द नॉलेज फ्रॉम द व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एनवायरमेंट, ठीक है। और अभी तो एक फिलहाल एक और न्यूज चल, एंड वी कैन ऑल्सो एबल टू गेट द नॉलेज थ्रू न्यूज, जो मैंने इन्वायरमेंटल आपको बताया ना, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल, that can be the part of the environmental scanning as well. Like we can also take the help of the newspapers, न्यूज़पेपर्स वगैरह जो आते हैं आपके, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स जो आता है, बिजनेस वीक आता है, ये सारे आपके बिजनेस के ऊपर ही सारे न्यूज होते हैं, कौन सी कंपनी का शेयर कितना महंगा, कौन सा कंपनी, क्या बोल रहे हो बेटा। तो उसके अलावा और भी चीजें हो सकती है, जैसे कि आपका बिजनेस वीक है तो कौन सा बिजनेस अभी नया, कौन सा जॉइंट वेंचर, कौन सा बिजनेस मर्ज हुआ, कौन से बिजनेस को एक्वायर किया गया, कौन सी कंपनी ने यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ न्यूज, ठीक है, ये सारी न्यूज आपको बिजनेस वीक में मिल जाएगा, यानी एक महीने में क्या हुआ, कंपनी में क्या क्या चेंजेस आए, बदलाव आए, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए वी कैन डू द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। So environmental scanning के लिए what we can do, we can take the help of the newspaper, we can take the help of the social media, we can able to understand that, we can see the news as well, जो टेलीविजन पे कौन सा न्यूज आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत ज्यादा ब्रांडिंग हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, कौन सा ऐसा कंपनी है जो बिल्कुल डाउन चला गया। तो ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम ऑल दीज न्यूज वी आर एबल टू डू द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। Now, creativity and creative problem solving, like the ideas, like यहाँ पर you have to think, वो तो पता है कि आइडिया निकालने के लिए we have to think, but here we have to see that जो भी आइडिया है we have to see it in every angle, हर एक एंगल से इसको सोचना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि फाइनली हमें लॉस हो, ठीक है। इफ वी वांट टू स्टार्ट मान लीजिए कि हमें कोई वाटर का बिजनेस शुरू करते हैं कि भाई वाटर को पैक करके बेचेंगे, तो उसका इम्पैक्ट और भी क्या पड़ सकता है निगेटिवली, लाइक प्लास्टिक बॉटल्स बहुत सारे आ जाएंगे, इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा। सो वी हैव व्हाटएवर बिजनेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी हैव टू एनालाइज इट इन वेरियस एंगल, हर एक एंगल से, हर एक सोसाइटी के ग्रुप के हिसाब से वी हैव टू एनालाइज इट, राइट। नेक्स्ट थिंग, लाइक वी हैव टू कनेक्शंस, मतलब एंगल्स देखिए, कनेक्शंस, अप्रोचेस, मतलब वी हैव टू डू द क्रॉस थिंकिंग, पॉजिटिव वे एज वेल एज निगेटिव वे, क्लियर है। इसके अलावा हमें और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, लाइक वी कैन ऑल्सो टेक द रिजल्टिंग, मतलब इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सो मेनी एरियाज, बाकी और जगह से भी हम देख सकते, ले सकते इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो यू हैव टू यूज द क्रिएटिविटी, यू हैव टू यूज द माइंड, बट यू हैव टू एनालाइज इट थ्रू एवरी एरिया। ओके, एक और चीज हो सकता है, फ्री एसोसिएशन वी कैन मेक, वेयर बाय एन एंटरप्रेन्योर्स डेवलप ए न्यू आइडिया थ्रू अ चेन ऑफ वर्ड्स एसोसिएशन, यानी कुछ लोगों को जोड़ करके वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड एट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज सुटेबल फॉर अस, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपकी आगे क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो फैमिलियर और यूज टेक्निक है, इसमें आइडिया को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तरीका है जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा होता है, जो मैंने अभी पहले बता दिया। एक रूम में कुछ लोगों को बैठा दिया एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में, और उसके बाद यहाँ पर लोगों को पूरा टाइम दे दिया, स्ट्रेच करो अपने दिमाग को, स्ट्रेच योर माइंड एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग, कुछ बेहतर, ठीक है। एंड अ ग्रुप लीडर्स जो है वो स्टेट करेगा कोई इश्यू या प्रॉब्लम, ताकि जो पार्टिसिपेंट है वो समझ सके, मतलब ये कैसे होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, we'll give the one problem like poverty, how we can reduce poverty, so that can be the one problem and a step. Now you have full time to think about it, right? So in short, here the members जो होंगे वो verbally they can tell you about the solution, and every people have their own मतलब perception, thinking, mind, environment, so they will give the answer according to that, ठीक है। and never depreciate, मतलब never was it discourage those people who are giving the ideas of it, because some people will give you crazy idea, मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत अलग आइडिया जो अनरियलिस्टिक आइडिया लगे, तो ऐसे भी अगर कोई आइडियाज देते हैं तो नेवर से कि हाँ ये आपने गलत बोला, बट ऑलवेज ट्राई टू इनकरेज द पीपल हु आर बेसिकली डूइंग दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्क। कोई भी आइडिया हो, कैसा भी हो, इलॉजिकल हो, जो भी आइडिया हो उसको आप सुनिए, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में कि आपने गलत बताया, डीमोटिवेट नहीं करना है,
but we have to basically give them full time for brainstorming and for analyzing or for starting the या फिर getting the idea. Okay, so there is one more thing. Focus group तो समझ आ गया होगा. Like this group is only focused for one thing and that is innovating. मतलब कुछ नया लाने पे, innovation करना, कुछ नया लाना. जो मार्केट में चल रहा है वो नहीं, नया लाना. और एक है रोल ऑफ इंट्यूशन. रोल ऑफ इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? जो आपका दिल और दिमाग क्या कहता है. ठीक है, what your mind is saying. तो यहाँ पर बेसिकली इंट्यूशन इज समथिंग दैट इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस. कॉग्निटिव मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है अनुग्रह कॉग्निटिव? कॉग्निटिव का मतलब होता है जो चीज हम धीरे धीरे लर्न करते हैं, समझते हैं, बचपन से देखते आए जो चीज धीरे धीरे लर्न करते रहे, कॉग्निटिव लर्निंग प्रोसेस कहते हैं इसको. ठीक है, तो आपका इंट्यूशन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल से भगवान ने कहा बेटा ये सोचो तो ऐसा होगा. नो, बेसिकली वॉट एवर द कॉग्निटिव लर्निंग यू वेंट थ्रू, जो भी कॉग्निटिव आइडिया के थ्रू आप गए होंगे, ठीक है, वो सारी चीजें जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगी और वही कहीं ना कहीं वो आपको बताएगी कि क्या चीज करना चाहिए. लाइक क्या आपके दिमाग में आएगा, इंट्यूशन आएगा आपके. इंट्यूशन इज समथिंग जो एकदम से दिमाग में आता है, आप बिल्कुल उसके लिए रेडी नहीं है एंड यू विल थिंक अरे ऐसा हो सकता है. तो यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर बिकॉज इंट्यूशन वी कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट इंट्यूशन इज राइट. But somehow that intuition is something which is made up because of your earlier experiences, because of your cognitive learning. So यहाँ पर we can also take the help of the intuition. But intuition जो work करे 100% जरूरी नहीं है. उसके अलावा आपके और भी तरीके हैं जहाँ से आप business idea ले सकते हो. ट्रेड फेयर्स के थ्रू, कंजप्शन पैटर्न जो बदलाव हो रहा है उसके थ्रू, कंज्यूमर के डिमांड के थ्रू, प्रोडक्ट का प्रोफाइल के थ्रू, अभी इंडिया ग्लोबल मार्केट का पार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू, स्टिमुलेशन ऑफ सिक यूनिट्स यानी कि जो बंद होने वाली इंडस्ट्री उनको, उनसे भी यू कैन गेट द आइडियाज, राइट. एंड ये सारी चीजें होंगी. फिर नए टेक्नोलॉजी, कंजप्शन पैटर्न वगैरह कैसे बदलाव हो रहा है, तो ये सारी चीजों से वी आर एबल टू गेट द बिजनेस आइडियाज. अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं. कौन सा आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेस्ट होगा. बहुत सारी चीज रिपीटेटिव है यहाँ पर, लेकिन याद रखिए कभी भी बिजनेस को सिलेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स हम देखेंगे. इन्वेस्टमेंट का साइज क्या होना चाहिए, कितना रुपए हम लगाने वाले हैं बिजनेस में, कहाँ बिजनेस शुरू करने वाले हैं. ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या होगा, मतलब कि मशीनरी यूज करेंगे, कैपिटल पूरा यूज करेंगे, मशीनरी यूज करेंगे कि ज्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क होगा, कैपिटल इंटेंसिव वर्क होगा, वो देखेंगे. कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा मशीन यूज करना है. उसके अलावा मार्केटिंग क्या होगा, बेसिकली हम कैसे प्रोडक्ट को सेल करेंगे. तो ये सारे के सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए. हाँ, उसके अलावा आपका मार्केटिंग में वही प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्राइस क्या, प्लेस क्या, प्रमोशन. 4 P's को एनालाइज करेंगे मार्केटिंग में. लोकेशन क्या होगा, कितना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, इक्विपमेंट क्या यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी क्या होगा और मार्केट में मार्केटिंग कैसे करेंगे. So these 5 factors or criteria is going to help you to identify or select the business opportunity या business idea. क्लियर हो गया. बिजनेस आइडिया कहाँ से आएगा, रफली याद करना. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू कर सकते हैं, हॉबीज के थ्रू कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू कर सकते हैं, ट्रेड फेयर के थ्रू, कंजप्शन पैटर्न के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू. ठीक है, सो ऑल दीज आर द वेरियस वेज फॉर गेटिंग द आइडिया फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस. ओके, एनीवन हैव एनी